السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں ایمان نواز اور میں ہوں اعتزاز نقی۔ اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل محمد اکرم پر بانی PTI کی سہولت کاری کا الزام ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ جیل پر خفیہ طور پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ تحقیقات کے بعد ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی کی جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں انوار عباسی سے۔ انوار بتائے گا، اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو حراست میں لے لیا گیا ہے؟ جی بالکل، سینٹرل جیل اڈیالہ سے ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے۔ احساسداروں نے اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو حراست میں لے لیا ہے۔ سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم پر بانی PTI کی سہولت کاری کا الزام تھا۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کو اختیارات سے تجاوز کرنے پر تحویل میں لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق احساسداروں کی جانب سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ سے تحقیقات بھی جاری ہیں۔ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ پر خفیہ طور پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی کا بھی الزام تھا۔ ذرائع کے مطابق احساسداروں کی جانب سے IG جیل خانہ جات پنجاب کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقات کے بعد سپرنٹنڈنٹ کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ واضح ہے کہ جی بہت شکریہ انوار عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ملک بھر میں 77واں یوم آزادی قومی جوش و جذبے سے منائے۔ پرچم کشائی کی تقریب اور سرکاری اور نجی سطح پر کیک کاٹنے اور دیگر تقاریب میں شہریوں کی بھرپور شرکت۔ بلند عمارتوں پر چراغاں، گلی کوچوں اور سڑکوں پر سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 توپوں، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ شہری کہتے ہیں ملک کی آزادی کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ قوم ملی جوش و جذبے سے جشن آزادی منانے میں مصروف۔ ملک بھر میں تقریبات کا سلسلہ جاری۔ جشن چراغاں، بلند و بالا عمارتیں، گلی کوچے اور شراہیں برقی کمکموں سے سج گئے۔ ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور ملتان سمیت ملک کے کونے کونے میں آتش بازی۔ یوم آزادی کا آغاز نماز فجر میں ملکی ترقی اور یکجہتی کی خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں منعقدہ تقاریب کے دوران تحریک آزادی کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی جائے گی اور آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت پاکستان کے چاروں صوبوں میں یوم آزادی قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد اور علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی، گورنرز اور وزراء اعلیٰ ہاؤسز میں پرچم کشائی کی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کی 77ویں سالگرہ کے کیک بھی کاٹے گئے۔ یوم آزادی چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر سندھ بھر میں سرکاری اور نجی سطح پر تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ خواتین و مرد، جوان، بوڑھے اور بچے دن بھر گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر قومی پرچم لگا کر سڑکوں پر آزادی کا جشن مناتے نظر آئے۔ مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب بھی منعقد کی گئی۔ نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور سمیت پنجاب میں بھی جشن آزادی کی تقریب، شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی اور رکھی گئی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ یوم آزادی کے موقع پر گورنر ہاؤس پشاور میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم نے بھی شرکت کی۔ پاک فوج کی جانب سے بھی خیبر پختونخوا میں 77ویں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور نے کہا کہ آج پاکستان کے پرچم کے ساتھ ساتھ پارٹی کا جھنڈا بھی لہرا رہا ہے۔ بلوچستان کے عوام بھی یوم آزادی جوش اور جذبے کے ساتھ منا رہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سرکاری اور غیر سرکاری تقاریب
तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने आज़ादी के फलसफे पर रोशनी डाली। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी यौम आज़ादी मिली जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड हुई। कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा किया और मादर वतन के शहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी की गई जिसने आसमान जगमगा उठा। हमें आज़ादी पाकिस्तान पर मिलिट्री एकेडमी काकूल में आज़ादी परेड हुई। कैडेट्स ने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहरा किया और मादर वतन के शहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर थे। तकरीब के आगाज पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर सुनाई गई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनरल सलूट पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पिछले चंद सालों से बैरून ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है? सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। मोमिनो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो, ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आइन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़ेह हद बंदी भी कर रखी है। अपने खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखुसूस फितना अल खवारिज की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितने के बारे में कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आज हमारे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल खारिज अल मारूफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितना ने दोबारा सर उठाया है। इसी फितना के बारे में चंद दिन पहले उलमा व मशाइख कराम से बात करते हुए मैंने कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खास तौर पर हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, इशार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है, उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। तकरीब के अख्तिताम पर आतिशबाजी के खूबसूरत मुजाहरे से आसमान जगमगा उठा। और वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हुई। फजा मिली नगमों और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। तकरीब के आगाज में कौमी तराना पढ़ा गया। तकरीब के दौरान नौजवानों का जोश व खरोश तेज था। इस मौका पर मिली नगमों के साथ साथ हाजरीन के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान रेंजर्स की वलवला अंगेज परेड देखकर हाजरीन का जज्बा हुब्बुल वतनी मजीद बढ़ गया। पाकिस्तान रेंजर्स के दस्ते में खवातीन एहलकार भी शामिल थीं। पाकिस्तान रेंजर्स के शेर दिल जवानों के कदमों की धमक और वतन की हिफाजत के जज्बे की चमक ने हाजरीन का लहू खूब गरमाया। पंडाल में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पुरजोश अंदाज में अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मौजूदा चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बालाए ताक रखकर काम करना होगा। मुल्की इत्तेहाद, सालमियत और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म होकर काम करने की जरूरत है। यौम आज़ादी के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि हमारी जिम्मेदारियां हैं कि अवामी फलाह बहबूद के लिए वसाइल को बरोए कार लाएं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने कहा है जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम पीटीआई के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि सलमान शहबाज ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को फैज हमीद का नाम आर्मी चीफ के लिए तजवीज़ किया था और उन्होंने अपनी तरक्की के लिए लॉबिंग की। जुल्फी बुखारी ने कहा कि फौज का कभी बैनुल अक़वामी सतह पर जिक्र नहीं किया। मुझे पता है कौन सी बात कहाँ करनी है, मुझे पता है कहाँ अपनी गलतियों का जिक्र करना है, कहाँ नहीं। उन्होंने कहा कि जनरल फैज की गिरफ्तारी अगर करप्शन की वजह से है तो ये फौज का अंदरूनी मामला है, लेकिन क्या सिर्फ जनरल फैज हमीद पर ही इल्जाम थे? साबिक आर्मी चीफ के ऊपर इल्जाम नहीं थे? फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो लिख रहा है वो पीटीआई का सोशल मीडिया नहीं है। जो बैरून मुल्क बैठे एक्स मिलिट्री या कोई और लोग बैठकर लिख रहे हैं, ना वो पीटीआई का हिस्सा है, ना हम उन्हें जानते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। कहा यह एक अहम मौका है जो मुसलमानों के एक अलग वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। इस मुसर्रत दिन मुल्क की खातिर कुर्बानियां देने वालों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और इक़दार के दिफा के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करती है। कौम की तरफ से उन पर किए गए एतमाद को बरकरार रखती है जब हम इस यौम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में 77वीं यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात मुख्तलिफ अजला में पाक फौज और फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ की जानिब से कुरान खानी की गई। मकामी कमांडर्स की जानिब से परचम कुशाई और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डीआईजी, फ्रंटियर कोर अफसरान और जवानों ने सब्ज हिलाली परचम को सलामी भी पेश की। ब्रिगेडियर कमांडर बन्नू ने यौम आज़ादी की मुनासबत से पौधा लगाया और केक भी काटा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमीशन में यौम आज़ादी की तकरीब पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर साद अहमद फड़ाश ने परचम कुशाई की। तकरीब में पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसरान और अमला भी मौजूद था। तकरीब में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की है और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। सऊदी फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन ने मुल्क के लिए नेक जज्बात का इजहार किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।